everyone, I hope so you're doing well. In today's video, I'm going to share with you some tips and tricks how you can crack your IELTS exam. Speaking is a big problem for IELTS candidates and especially for those who wants to achieve 6.5, 7, 8 or 8.5 score in their speaking. Today I'm going to share with you some tips how you can crack your IELTS exam. And there is no any hard and fast rule that you will do this then you will get the required score, but you can use some tips and tricks that will help you to achieve your score. And in this video I'm going to discuss about the things in two languages. One is for like international and one is for Pakistani, Indian, Bengalis. They can understand little Urdu as well, so I will make it little easy and comfortable for them. So my tip number first is, don't memorize your answer before the exam. The IELTS examiners will know whether you memorized answers before the exam. Learning answers off by heart is a bad idea and it will make you sound scripted. To sound natural and fluent, learn some phrases and collocations. Always what they are doing, they are changing the question. I mean, concept is same, but the description and follow-up points are different. So if you're learning one question for one answer for one question, but there you can't say as it is. आप एक आंसर याद करके तो उसको एज इट इज़ वहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते. आपने क्या करना है कि आपने एक टॉपिक लेना है, उस टॉपिक से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स एंड सम फ्रेजेस एंड कॉलोकेशंस जो हैं वो आपने प्रिपेयर करनी. तो वो क्या होता है कि वो आपके आंसर को जो है वो इजी बना देता है और आप नेचुरल लगते हैं. आई मीन एग्जाम में वो ऐसा नहीं चाहते कि आप जो है ना, आपकी उन्होंने मेमोरी चेक नहीं करनी, आपकी उन्होंने वोकैबुलरी चेक नहीं करनी और आपका ये नहीं देखना कि आप कितना रट्टा लगा सकते हैं. उन्होंने आपका ये देखना है कि आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. मतलब वो आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं. वहाँ पे आपने फॉरेन में जाके, जो भी कंट्री में जाके स्टे करना है, वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने आप को पहले से रेडी कर लें. आपसे वहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछता है और आपको वो क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, तो आप उसके मुताबिक उसका आंसर नहीं दे सकते ना. दैट इज़ अ रीज़न फॉर ऑल दिस, यू कैन से, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टिप नंबर 2. आवर टिप नंबर 2 जो है, आपने क्या करना है, स्पीक स्पॉन्टेनियसली. Try to speak fluently and spontaneously during your exam. Easier said than done, we know. Confidence boosting techniques can help significantly here. For example, take proper pauses and breaks. Vocabulary is also important. You can build this skill with a notebook and reviewing synonyms. Have a look at your full IELTS speaking exam vocabulary guide. I will share with you some method or tip how you can improve your vocabulary. So if you will improve your vocabulary, then it will be very easy for you. What you have to do, you have to write the vocabulary word and write the synonyms of that word and use in 2 or 3 sentences that word. So it will be very easy for you to keep in your memory that specific vocabulary word. It will be very helpful for you to use that vocabulary for your speaking and for your listening in both tests. My tip number 3 is practice your IELTS speaking using sample questions. Listening to IELTS speaking practice exam is great, but it is also important to practice answering questions about common topics. During the exam, you will be asked about everyday topics such as about your hobbies, sports and family. Try answering these kinds of questions before your exam to prepare. आप एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले ही इन सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, सिंपल टाइप के टॉपिक्स हैं, आपकी डेली रूटीन से मुताबिक होते हैं. हमेशा से पिछले कितने सालों से मैं देखती आ रही हूँ. पर्सन के बारे में है, आपकी फेवरेट चॉइस के बारे में है, आपके टॉयस के बारे में है, आपके ड्रेस के बारे में है, फेवरेट कलर के बारे में है, फेवरेट फूड के बारे में है, फेवरेट मूवी के बारे में है, फेवरेट सॉन्ग के बारे में. आई मीन जो डेली रूटीन के क्वेश्चंस हैं, तो आपने क्या करना होता है कि सिंपल अपने माइंड में जो है ना, उस चीज़ से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और फिर आपने उसका आंसर करना है. ठीक है. So let's move towards
towards our next tip. Number 4 is don't be shy to ask for clarification. अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप एग्जामिनर को पूछ सकते हैं कि सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क, और आप उनसे जो है पोलाइटली रिक्वेस्ट, सर प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन. इन अ वे यू कैन सिंपली आस्क फ्रॉम हिम. Like if you're not sure about the question the examiner asks, you are allowed to ask for clarification or ask them to repeat themselves. Learn phrases like I'm sorry, could you please repeat the question, you won't lose point. मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई अगर आप उससे पूछेंगे तो शायद वो आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. आप आराम से उसको 2 से 3 4 दफ़ा भी पूछ सकते हैं कि प्लीज़ कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. My next tip, tip number 5, elaborate and extend your answers. In the speaking exam, you should avoid giving one word answer, yes or no answer, and always try to elaborate your response to show your fluency and grammatical range. This is very important. Some students answer only yes and no. For example, आपसे पूछा जाए, do you like movies? Yes. Simple answer, yes or no. No, you have to elaborate your answer. आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन के मुताबिक आपने आंसर देना है, फिर अपने आंसर के बारे में जनरल आइडिया देना है, और फिर उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई एग्जांपल जरूर देनी है. हर आंसर में जो है ना आपने स्पेशली डिस्कशन वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपने एग्जांपल जरूर ऐड करनी है. Tip number 6, don't rush towards your answer. Speak slowly and clearly. Give yourself time to think, especially when you are nervous. If an answer doesn't immediately come to your mind, then try using some phrases that will give you some time. For example, I never thought about that before, or that's an interesting question, like that. Tip number 7, don't panic if you make a mistake. अगर आपसे गलती हो जाती है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. You can ask again. Or you can correct your mistake. तो उससे पता चलता है कि भाई you realize that you had done this mistake and then now you can correct it. Our tip number 8 is practice fluency and accuracy separately. Keep in mind that speaking criteria comprises 2 components, accuracy and fluency. Choose one and practice it until you feel confident. Concentrate on one at a time will help you put in 100% of your effort on each one separately rather than sharing it out. दोनों को एक ही दफ़ा में प्रैक्टिस नहीं करना, एक दफ़ा फ्लुएंसी की आप प्रैक्टिस कर लें, देन एक दफ़ा एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करें. और टिप नंबर 9 है प्रैक्टिस स्पीकिंग विद नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स. आई मीन जो भी आपको मिलता है, नेटिव मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो एनी पर्सन विद टू होम यू कैन प्रैक्टिस योर स्पीकिंग एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स पर डे. तो आपने ये हैबिट बना लेनी है. टिप नंबर 10 है यूज एनेक्डोट्स. इफ पॉसिबल यूज एनेक्डोट्स ड्यूरिंग योर आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2. एंड इससे आपको क्या होता है कि छोटी सी स्टोरी आप जो, तो ये आपको आपका आंसर एलैबोरेट करने में बहुत हेल्प करेंगे. टिप नंबर 11, व्हेन यूजिंग एग्जांपल्स इन योर रिस्पॉन्स ट्राई टू अवॉइड हाइपोथेटिकल सिचुएशंस. ऐसी सिचुएशन नहीं बतानी जो आपने क्रिएट की है. आप कुछ रियल लाइफ की एग्जांपल देख लें, आप कुछ रियल जो है वो देख लें, नेचुरल देखें, जिसमें आपको कम्युनिकेट करना बहुत इजी होता है. क्योंकि अगर आप कुछ भी इमेजिन करके बोलेंगे तो फिर वो आपको जो है ना वो बाद में सेंटेंसेस को कनेक्ट करना और उसमें जो है ना वो डिफरेंट चीज़ों को ऐड करने में आपको प्रॉब्लम आएगा और आप अपनी स्टोरी को जो है वो एलैबोरेट नहीं कर सकते. टिप नंबर 12, लर्न यूजफुल फ्रेजेस फॉर द एग्जाम. Learn new vocabulary and phrases for your exam. Learn to use them in the context, adopt them, master them, and they will help you, but only if used correctly. ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिला तो उसको कहीं भी जोड़ लिया. जैसे कभी नेट पे वीडियोस होती हैं कि 9 वर्ड्स vocabulary words to achieve 9 band और 7 band. तो वो वाले वर्ड्स जो हैं वो कहीं पे यूज भी होने हैं. देखना है कि वहाँ पे फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस. ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड उठा के कहीं पे भी लगा देंगे तो आपको जो है वो बैंड 9 जो है ना वो आपका स्कोर आ जाएगा. और अपने सैम्पल आंसर जो है वो घर में ही लिखने की प्रैक्टिस करें. राइट आउट योर सैम्पल आंसर फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट आप उनकी बेसिक वोकैबुलरी जो है वो उसको लिखें, उसकी प्रैक्टिस करें. टिप नंबर 14 है डेवलप योर लिसनिंग स्किल्स. यू वांट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर विदाउट आस्किंग द क्लैरिफिकेशन. आप अपनी जो है लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करें. नाउ हियर आई एम शेयरिंग द क्यू कार्ड्स फॉर कमिंग एग्जाम दैट यू कैन सी. फैमिली है, इसमें जो है किसी भी फैमिली मेम्बर के बारे में बात हो सकती है. फेवरेट है, आपने अपनी कुछ भी फेवरेट चीज़ जो है उसके बारे में बात हो सकती है. फेवरेट पर्सन होगा, मूवी होगी, टॉय है,
कोई भी फेवरेट चीज़, तो फेवरेट से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो आप प्रिपेयर कर लें और कुछ फ्रेजेस और कोलोकेशंस जो हैं वो प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट है टाइम बेस्ड, इट इन्वॉल्व्स एन इवेंट दैट अकर्ड इन द पास्ट और विल हैपन शॉर्टली। कोई भी ऐसा मतलब पास्ट में, जैसे कोई बर्थडे होती है, आपने कोई बर्थडे अटेंड की, आपने कोई वेडिंग सेरेमनी अटेंड की, आपने कोई सेरेमनी अटेंड की, आपने कोई रिलीजियस सेरेमनी अटेंड की, कोई भी इससे रिलेटेड रहता है, तो आपने क्या करना है, कुछ कोलोकेशंस फ्रेजेस जो है वो इससे रिलेटेड आपने प्रिपेयर कर लेनी, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अच्छा जी, उसके बाद ओकेजन से रिलेटेड वोकैबुलरी जो है कुछ कर लें, जैसे बर्थडे है, मैरिज है, कोई रिलीजियस इवेंट हो सकता है। ऑब्जेक्ट इंक्लूड स्पीकिंग अबाउट एनी ऑब्जेक्ट सच एज अ चेयर, मिरर, टॉय, पेंटिंग, और आपके घर में कोई भी आपकी फेवरेट आइटम, कुछ भी ऐसी चीज़ें रह सकती हैं। इमोशंस जो हैं इसमें आपको अपने किसी भी उसके इमोशंस के बारे में बात, मतलब अ टाइम व्हेन यू वर वेरी सैड, a time describe a time when you were very happy, describe a time when you were trying to make another person happy। तो डिफरेंट टाइप के इमोशन से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। फिर पर्सन है, आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। फिर प्लेस, प्लेस में जी आप कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे आपने विजिट किया है या आप विजिट करना चाहते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हो सकती है, कोई आपकी जो है फेवरेट प्लेस हो सकती है, वो आपको कह सकते हैं कोई म्यूजियम हो सकता है, और कोई भी ऐसी प्लेस जो कोई नेचुरल प्लेस हो सकती है, कोई विजिटिंग एरिया हो सकता है, जैसे नॉर्दर्न एरियाज हैं, या कोई इंटरनेशनल प्लेस हो सकती है। आई मीन इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन ही प्रिपेयर करना, आपने रिलेटेड वोकैबुलरी, फ्रेजेस एंड कॉलोकेशंस प्रिपेयर करने हैं। मैं एक और वीडियो में आपको बता दूंगी कि आपने रिलेटेड वोकैबुलरी, कॉलोकेशंस और फ्रेजेस जो है ना वो कैसे अपने टॉपिक वाइज जो है वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो फिर वर्क और स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको जब वर्क पसंद था, नहीं पसंद था, आपको स्टडी पसंद थी, नहीं पसंद थी। तो दैट्स ऑल फॉर योर